Hello everyone, welcome back to our PIB classes, and today we are going to discuss MCQs of PIB session from 19 to 21 of August. Right, so let us start with our PIB MCQs. First MCQ says the Anna Chakra supply chain optimization tool is implemented under which system? So first let us see the answer and then I'll tell you the description. So Anna Chakra supply chain optimization tool is implemented under public distribution system. And now what does it means is Anna Chakra क्या है? Anna Chakra एक टूल बनाया है ताकि हम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर उसको और ज़्यादा एफिशिएंट कर सकें. ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को डिसाइड करने का शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट रूट ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके फूड ग्रेन्स को. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेव्स मनी. इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 31 स्टेट्स एंड यूटीज़. 30 स्टेट्स एंड यूटीज़ के में इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर मणिपुर में इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो रहा है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. Now when the question asks the Anna Chakra supply chain optimization tool is implemented under which system, so the answer would be public distribution system, because it's trying to save the transport cost by reducing reducing unnecessary routes and choosing the best and shortest routes. Now the second question is how many globally important agriculture heritage systems यानी कि GIAHS sites are currently recognized in India by FAO. So there are 3 sites, 3 GIAHS sites यानी globally important agriculture heritage system sites are recognized in India by FAO. तो उन 3 sites का आपको नाम याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि ये रिकॉग्निशन कौन देता है. सबसे पहली बात तो कि GIAHS साइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय FAO एंड देन देयर आर 3 साइट्स जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, दैट इज़ कोरापुट ओडिशा, कोटानाड फार्मिंग केरला एंड सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3 साइट्स? सो डी नीलगिरी टी एस्टेट्स तमिलनाडु इज द राइट आंसर. नाउ ऑल्सो व्हाट इज़ दिस इनिशिएटिव ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम? ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को जिनकी एक यूनिवर्सल वैल्यू है. सो ऐसी साइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है. नाउ देर आर प्रेजेंटली 3 साइट्स जो एडेड हैं ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स में. नाउ फोर्थ क्वेश्चन आस्क what is ECI Net recently launched by Election Commission of India? So ECI Net क्या है? ECI Net एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट कर रहा है मल्टीपल इलेक्शन रिलेटेड ऐप्स को एंड वेबसाइट्स को. सो ECI Net इज़ रिलेटेड विथ इलेक्शंस. इट्स लॉन्च्ड. ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे इलेक्शन रिलेटेड ऐप्स को इंटीग्रेट कर रहा है एक प्लेटफॉर्म के अंदर. सो दैट इज़ ECI Net. नाउ fifth question says who has been crowned Miss Universe 2025? Miss Universe India 2025 has been crowned Manika Vishwakarma. So Manika Vishwakarma, she is from Rajasthan. Event Jaipur Rajasthan में हुआ था and she will represent India at 74th Miss Universe competition at Thailand. So Miss Universe India बनी है मनिका विश्वकर्मा and now she will represent Miss Universe on behalf of India at Miss Universe competition in Thailand, the 74th Miss Universe competition. Sixth question says the Press Seva portal is related to which of the following? The Press Seva portal क्या है? प्रेस सेवा पोर्टल है कि हमें रजिस्ट्रेशन जो है न्यूज़पेपर्स का एंड पीरियोडिकल्स का उसको सिंप्लीफाई करना है. सो प्रेस सेवा पोर्टल इज़ रिलेटेड टू दैट. सी जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है टू बिकॉज देर आर सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस. सो यू हैव टू नो दैट प्रेस सेवा इज़ रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. नाउ seventh question is which organization announced that Nepal has eliminated rubella as a public health problem? So this has been announced by WHO, World Health Organization, but also आपको ऐसे भी याद रखना है कि which country has recently eliminated rubella. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है then also you should know that Nepal is the right answer. And if the question asks कि Nepal has recently eliminated which disease, then rubella is the right answer. India has still not eliminated rubella as a public health problem, but recently WHO announced that Nepal has eliminated rubella as a public health problem. Now
Eighth question says, Assam Rifles has signed an MOU with which institution to enhance innovation and technological advancement? यानी Assam Rifles and कौन से इंस्टीट्यूशन ने एक ऐसा MOU साइन किया है जो कि क्या करेगा, जो कि इनोवेशन को इन्हांस करेगा. एंड इनोवेशन इन व्हाट? इन ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस. सो IIT मणिपुर एंड असम राइफल्स हैज़ साइंड MOU ताकि वो कोलैबोरेशन कर सकें इन ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस. So you have to remember this line. It's very important fact that could be asked in your exams, that Assam Rifles have signed MOU with IIT Manipur to foster collaboration in drone technology for defense and security purposes. Ninth question is, the Kunj has been developed by which authority? Now what is Kunj? Let us first read what is Kunj and then I'll get back to you on the MCQ. So Kunj has been launched by the Ministry of Textile on 21st of August 2025. So Minister of Textile Shri Giriraj Singh has launched this. Now what is Kunj? कुंज यानी कि एक फ्लैगशिप रिटेल एंड कल्चरल डेस्टिनेशन जो हमने डेडिकेट किए है टू सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स. ना यू कैन सी कि ये नाबार्ड लाइक एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हैंडलूम्स आर देयर इन द सिलेबस. सो कुंज एक फ्लैगशिप रिटेल एंड कल्चरल डेस्टिनेशन है जो कि लॉन्च की है, जो डेडिकेटेडली सेलिब्रेट करता है और प्रमोट करता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को. हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. हम इन्हेंस कर सकें मार्केट एक्सेस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स. हमें री इमेजिन करना है क्राफ्ट सेक्टर विद अ डिज़ाइन लेड experiential approach and aligns with a vision from गाँव to global. So these facts, these lines are also important. Now let's get back to the question. It says, the Kunj has been developed by which authority? So it has been developed by Office of Development Commissioner Handicrafts. So इन्होंने इसको डेवलप किया है, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैंडीक्राफ्ट्स. एंड ऑल्सो कुंज इज रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट्स. दिस यू हैव टू रिमेंबर. राइट नाउ 10th question says, which ministry has launched the पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल? नाउ जब ये पोर्टल्स ऐसे पूछे जाते हैं तो ये पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज पोर्टल्स पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो नाउ इट इज़ आस्किंग दैट विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च पूर्वोत्तर विकास पोर्टल और PVS पोर्टल, एंड देन इट इज़ आस्किंग इन द 11th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ PVS पोर्टल. सो फर्स्ट पूर्वोत्तर विकास पोर्टल है, पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल है क्या? ये डेवलप किया है पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. बिकॉज एनीवेज पूर्वोत्तर जी की जब हम बात करते हैं तो हम ईस्ट इंडिया की बात करते हैं. सो दैट वेज आप याद रख सकते हैं कि पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. And you have also to remember the name of portal, that is पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल. Now इस पोर्टल के क्या फीचर्स होंगे? The features would be online submission of project proposals by state governments would be done on the portal. उसके बाद अगर हमें लाइन मिनिस्ट्री से ऑनलाइन कमेंट कलेक्ट करने हैं, वी कैन डू सो इन दिस पोर्टल. देन यू कैन ऑल्सो ट्रैक कम्युनिकेशंस विद स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज इन द पोर्टल. ये पोर्टल क्या नहीं करेगा? इट्स नॉट अ फीचर कि आधार लिंक्ड वेलफेयर पेमेंट्स इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस पोर्टल. पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ प्रपोजल्स ऑनलाइन सबमिट होने हैं, कुछ ऑनलाइन कलेक्ट करने हैं कमेंट्स, या कम्युनिकेशंस ट्रैक करनी है स्टेट्स या मिनिस्ट्रीज़ के साथ. ये वो सारे जो फीचर्स हैं वो हैं पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल के. ओके, नाउ लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन. That says, the Gyan Bharata mission plans to create a national depository for what? Archaeological excavations, identified Indian manuscripts, cultural tourism, or Indian classical music. So first let's see and understand some facts about Gyan Bharata mission. So Gyan Bharata mission has been launched recently and financial outlay है 60 करोड़ का, एंड इट्स लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म. तो ज्ञान भारतम मिशन क्या करेगा? ज्ञान भारतम मिशन ज्ञान, सी यू कैन जस्ट सी नॉलेज.
तो ये जो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उनको लोकेट करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो प्रिजर्व्ड हैं बाय इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, इंश्योर करेगा प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ऑल्सो इट विल इम्प्लीमेंट अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन एंड पब्लिश, इसका ये भी काम रहेगा पब्लिश करना सिलेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर वाइडर नॉलेज डिसेमिनेशन. और इसके लिए फाइनेंशियल आउटले है 60 करोड़ रुपीज़. So this is Gyan Bharatam mission that is completely related to manuscripts. So Gyan Bharatam mission plans to create a national depository receipts for what? For identified Indian manuscripts. So B is the right answer. Now 13th question says, which company was fined by Central Consumer Protection Authority for misleading advertisements? So recently, I think 20 or 21st of August, Rapido was fined by Central Consumer Protection Authority क्योंकि उन्होंने जो उनका जो एडवर्टिजमेंट है ऑटो इन 5 मिनट्स और गेट ₹50 एडवर्टिजमेंट कैंपेन, इसके लिए उनको पेनल्टी चार्ज की है ऑफ 1 लाख रुपीज़. नाउ no, I'm sorry, it's not 1 lakh, it's 10 lakh rupees. So 10 lakh rupees की पेनल्टी चार्ज की है ऑन रेपिडो बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रिसेंटली फॉर मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स. सो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली CCPA हैव फाइन 10 lakh rupees ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर इट्स मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स, सो आंसर वुड बी रेपिडो. नाउ 14th question says, which city has become the first in India to install removable solar panels between railway tracks? So railway tracks के बीच में इंस्टॉल किए हैं रिमूवेबल सोलार पैनल्स. तो ये कौन सी सिटी बनी है टू फर्स्ट टू डू सो? इट्स वाराणसी. So B is the right answer. So that's it for the day. I hope you like the session. I hope you are enjoying PIB in the form of MCQs and it's becoming easy for you to study. I'll meet you all in the next session. Also, I'm starting July current affairs sessions in MCQs format with part 1, part 2 soon. And then also I'm planning to start with schemes, but just I'm organizing and just seeing how well can I organize schemes for you. Once I do that, I'll bring a lecture on schemes. Also, many students were telling me to bring video on general awareness strategy for NABARD. So I'll also bring a video on that. But if you are liking these sessions or if you want anything else, you can comment on that. Thank you for watching, and also you can join our Telegram channel for links for notes, PDFs, and also if you have any doubt, you can connect to us. Thank you for watching.